Hello my dear kids, how's you all? So welcome to my channel Science Freak. Welcome to this session in which we are going to start with the very important topic of class 11th biology, the excretory products and their elimination. हाँ जी, आपने एक्सक्रीशन के बारे में सुना हुआ है, मुझे पता है 10th क्लास में लाइफ प्रोसेसेस में आपने एक्सक्रीशन एक छोटा सा टॉपिक किया था जिसका एक टफ सा डायग्राम नेफ्रॉन मैंने तुम्हें करवाया था जो बहुत गुलजनदार था। बट 11th क्लास में हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन को उससे भी ज्यादा डिटेल में करेंगे, ठीक है? सो स्टे ट्यून्ड विद मी, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। फॉर द first thing you should know that the structure of kidney is not just like that it is a bean shaped red colored structure. No, it is very complex. Inside of the kidney many small calyces, medullary pyramids, many more things are there. So let's start with the structure and I will explain each and everything in a little detail. अपनी नोटबुक्स उठा लो, अपने नोट्स बनाने के लिए तैयार हो, जो हम आज कंसेप्ट्स बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे, everything we will do. So firstly I am going to start human excretory system. Firstly I want to know you, मुझे बताओ, कमेंट्स में लिख के बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन क्या होता है? Yes, it is the removal of metabolic waste from the body is known as remove excretion. अच्छा बेटा, एक्सक्रीशन के लिए हमारा ह्यूमन का एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन है? ह्यूमंस में एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किडनी। हर एक ऑर्गेनिज्म में जैसे डिफरेंट स्पीशीज है, पोरीफेरा, सिलिंट्रेटा, अर्थवर्म्स, इन सब में एक्सक्रीटरी ऑर्गन डिफरेंट है। तो ह्यूमन बॉडी में एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन है? किडनी है। तो किडनी का डिटेल स्ट्रक्चर आज हम करेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम का डिटेल स्ट्रक्चर आज हम करेंगे। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या पाया जाता है? पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ यूरेटर्स, one pear-shaped structure known as urinary bladder, and last opening is known as urethra. Urethra finally किसमें खुलता है? urethral orifice. These are the topics which we will discuss today. So human excretory system का diagram it is very easy, ऐसे कुछ ज्यादा टफ तो है नहीं इसमें, मैं तुम्हें खुद से ड्रॉ करके बता देती हूँ। आप भी बनाओ, साथ साथ में बनाने डायग्राम्स। तो बायो इज अ गेम, डायग्राम का गेम है ये। यस, द पेयर in red color क्या है ये? Can you tell? This is ureter, urinary bladder. हाँ जी, this is renal artery. renal word किडनी के लिए यूज होता है। This is inferior vena cava, हार्ट वाले पे पढ़ा था हमने। These are pair of ureters. This is urinary bladder. Temporary storage of urine occurs here. This is urethra. Tip of urethra is known as urethral orifice. Okay. सो अब ये हमारे पास रीनल आर्टरीज हमारे पास क्या है? डर्टी ब्लड कैरी करके लेके आ रही है एंड ये कहाँ एंटर कर रही है? किडनीज में। सबसे पहले देयर आर अ पेयर ऑफ किडनीज इन ह्यूमन बॉडी विच आर डार्क रेड
and bean shaped, present in the abdominal cavity just below the diaphragm. Diaphragm is a structure which separates the abdominal cavity from the thoracic cavity, and diaphragm is made up of phrenic muscles. Okay. Right kidney is slightly lower than the left kidney because of the presence of liver. जो right kidney है slightly वो low होती है as compared to left kidney. जो kidneys हैं, these are the protected by last two pairs of ribs, 11th and 12th pair of ribs, which are also known as floating ribs. ठीक है? And the location of kidney is these are present in between the last thoracic vertebra and the lumbar vertebra. Okay. हाँ जी, kidneys are covered from one side with the at the posterior of peritoneum, so that's why kidney is known as retroperitoneal in position. Next thing, kidney is bean shaped and it has this structure inside को, इसको क्या हम बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं. This structure is known as hilum. Let me repeat that in a very slow speed. That human excretory system consists of one pair of kidneys. These two kidneys are reddish brown in color and bean shaped in appearance. These two kidneys are present just below the diaphragm and covered from one side with the peritoneum. That's why it is known as retroperitoneal, because covered from just one side. Next thing is that kidney has this kidney is concavo-convex in structure, and in the concave side there is one depression known as hilum. In this hilum, renal vein, renal artery enters and pair of ureters merge out. Blood vessels की entry और ureters की outing क्या है, कहाँ से होती है? hilum से होती है. Okay. उसके बाद जो kidney है, it is covered by last two vertebrae या फिर protected by two floating ribs, and it is present in between the thoracic vertebrae and the lumbar vertebra. Next thing is that kidney has three coverings. Kidney has three coverings. Let me draw. First covering is known as renal capsule. Second covering is known as adipose layer या फिर adipose capsule. Third is known as renal fascia. So kidney has three outermost coverings. One is renal capsule. Renal capsule is made up of fibrous dense connective tissue, and it protects the kidney from any kind of injury, or we can say that any kind of infection. Next is adipose layer. Adipose layer is a fatty layer made up of fatty tissue, and it acts as a shock absorber. It prevents the kidney from any kind of shock. Last layer is renal fascia. It helps the attachment of kidney with the abdominal wall. These are the three layers which are the coverings of kidney, as well as protecting the kidney from any kind of mechanical shock and injury, and as well as helps in the attachment of kidney with the abdominal wall. Very good. Okay. Next is that internally kidney is divided into two parts. Outermost part is known as cortex. This outermost part is known as cortex, renal cortex we can say that, and the central portion is known as renal medulla. This is renal medulla and this is renal cortex. Very good. Okay. Next thing is that ये जो रीनल मेड्यूला है, इसकी जो सेंट्रल स्पेस है, इसको हम क्या बोलते हैं? रीनल पेल्विस बोल देते हैं. दिस स्पेस इज नोन एज रीनल पेल्विस. रीनल पेल्विस से हमारे पास कुछ प्रोजेक्शंस अराइज होती हैं. इन प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलते हैं? इन प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं कैलाइसिस. ठीक है, दीज आर द रीनल कैलाइसिस, जिसके ऊपर हमारे पास कोन शेप्ड स्ट्रक्चर बने हुए हैं. इन कोन शेप्ड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? मेडुलरी पिरामिड्स बोलते हैं. ठीक है, हमारे पास कुछ प्रोजेक्शंस हैं. रीनल मेड्यूला की जो सेंट्रल स्पेस है उसको रीनल पेल्विस बोला जाता है. रीनल पेल्विस में हमारे पास कुछ प्रोजेक्शंस हैं जिनको रीनल कैलाइसिस बोला जाता है. एंड कैलाइसिस के पास क्या है? कुछ कोन शेप्ड स्ट्रक्चर है जिनको क्या बोला जाता है? मेडुलरी पिरामिड्स बोला जाता है. ये जो मेडुलरी पिरामिड्स हैं ये अपने आप को एक्सटेंड कर रहे हैं. किस तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं? ये अपने आप को कॉर्टेक्स की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं.
एंड जो इन बिटवीन द टू मेडुलरी पिरामिड जो स्पेस है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम ऑफ बर्ट। इसको हम क्या बोल देते हैं, रीनल कॉलम बोल देते हैं, या फिर हम इसको कॉलम ऑफ बर्टिनी भी बोल देते हैं, कॉलम ऑफ बर्टिनी या फिर रीनल कॉलम भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है किडनी का। तो लेट मी रिपीट दैट ईच किडनी हैज 3 layers, renal corpuscle, the innermost layer, middle one adipose layer, and the last outer one is renal fascia. And inside the kidney there is a central space of medulla known as renal pelvis. Renal pelvis has some projections known as renal calyces. Upside of renal calyces attached, there are medullary pyramids attached. In between the medullary pyramids, the space is present known as column of Burtony and comes under the renal cortex. ठीक है, तो renal cortex का पार्ट जो क्या आ गया, column of Burtony, फिर क्या आ गया, medullary pyramids which are attached with calyces and open into renal pelvis. And जो renal pelvis है, फिर ये कहाँ पे जाके खुल रहा है, renal pelvis opens into ureters. ये जो रीनल पेल्विस है, दिस इज रीनल पेल्विस, ये कहाँ पे जाके खुल रहा है, ये यूरेटर में जाके खुल रहा है, क्योंकि यहाँ से जो सारा यूरिन है वो कहाँ जा रहा है, यूरेटर में जा रहा है। ठीक है, दिस इज द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अब वन मोर थिंग कि ईच किडनी हैज 1 million नेफ्रॉन। किडनी हैज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट नोन एज नेफ्रॉन। तो हर किडनी में 1 million नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन क्या करते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करते हैं यूरिन की, एंड उसको क्या है, सिलेक्टिवली अब्सॉर्ब करके यहाँ से सारे इन पार्ट्स में से रीनल पेल्विस से यूरिन होता होता कहाँ चला जाता है, यहाँ पे यूरेटर्स में चला जाता है। ठीक है, तो किडनी किससे बनी हुई है, नेफ्रॉन से। नेफ्रॉन जो सारे प्रोसेस करते हैं यूरिन फॉर्मेशन का, फिर वो यूरिन क्या है, इन सारे स्ट्रक्चर से गुजरता गुजरता यूरेटर से कहाँ चला जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। ठीक है, तो किडनी के ये सारे मैंने तुम्हें बता दिए हैं। उसके बाद किडनी का फंक्शन नेफ्रॉन्स की वजह से हो गया, फिर जो यूरिन बना था वो कहाँ चला गया, यूरेटर्स में। तो यूरेटर का फंक्शन क्या हुआ, दीज आर द थिन ट्यूब्स made up of transitional epithelium, they carry urine from kidney to the urinary bladder. ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, this pear shaped structure known as urinary bladder, it is a sac like muscular organ made up of transitional epithelium, and this urinary bladder is made up of smooth involuntary muscles. यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन मैंने तुम्हें उसमें भी बताया था, जो हमने ग्लैंड्स वाला चैप्टर किया था, कि दिस यूरिनरी ब्लैडर शो कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो ये कॉन्ट्रैक्शंस कैसे करता है, बिकॉज ये किससे बना हुआ है, स्मूथ मसल से बना हुआ है, एंड इसकी जो कवरिंग है वो भी क्या बनी हुई है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम से बनी हुई है। तो यूरिनरी ब्लैडर इंटरनली इसके अंदर एक ट्रायंगुलर सा स्ट्रक्चर पड़ा है, जिसमें यूरिन की स्टोरेज होती है, उसको क्या बोलते हैं, हम ट्राइगोन बोलते हैं। ठीक है, एंड दिस यूरिनरी ब्लैडर इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, जिनको हम डेट्रूजर मसल्स भी बोल देते हैं। कौन से मसल्स, डेट्रूजर मसल्स। अब हमारे पास ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, ये टेम्परेरी अमाउंट में यूरिन को स्टोर करता है, एंड फिर ये क्या है, यूरेथ्रा की हेल्प से यूरिन को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। अब जो हमारा ये यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा हमारे पास क्या है, यूरिनरी ब्लैडर की नेक से एक्सटेंड होता है एंड मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। इसके पास कुछ स्फिंक्टर्स है। ठीक है, 2 मैं अंदर की तरफ बना रही हूँ, 2 मैं बाहर की तरफ बना रही हूँ। जो बाहर वाले स्फिंक्टर है उनको एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स बोला जाता है, अंदर वाले स्फिंक्टर्स को इंटरनल स्फिंक्टर्स बोला जाता है। जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स हैं, जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर हैं, वो किससे बने हैं, स्ट्राइएटेड मसल से बने हैं, एंड जो दूसरा स्फिंक्टर है कौन सा, इंटरनल स्फिंक्टर, वो किससे बना है, स्मूथ मसल से बना है। तो ये जो स्फिंक्टर्स हैं, ये यूरेथ्रा को क्या रखते हैं, क्लोज्ड रखते हैं। जस्ट एट द टाइम ऑफ अर्ज ऑफ यूरिनेशन ये स्फिंक्टर्स खुलते हैं एंड मिक्चुरेशन ऑफ यूरिन क्या हो जाता है, लेट डाउन ऑफ यूरिन क्या हो जाता है। ये स्फिंक्टर्स यूरेथ्रा को क्लोज रखते हैं। अगर ये स्फिंक्टर्स ना हो तो यूरेथ्रा क्लोज नहीं होगा, तो डिप बाय डिप क्या यूरिन की रिलीज क्या हर टाइम होती रहेगी। तो जब ये खुलता है, इसकी जो टिप है यूरेथ्रल ओरिफाइस, इसके थ्रू यूरिन क्या है, बाहर रिलीज होता है। एंड ये जो यूरेथ्रा है, इसका मेल यूरेथ्रा एंड फीमेल यूरेथ्रा में एक डिफरेंस है। जो फीमेल यूरेथ्रा है उसकी लेंथ शॉर्ट होती है, मेल यूरेथ्रा की लॉन्ग होती है।
एंड जो फीमेल यूरेथ्रा है वो सिर्फ यूरिन कैरी करता है, बट जो मेल यूरेथ्रा है वो सीमन प्लस यूरिन दोनों चीजें ही क्या है, कैरी करता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट क्या क्या इसमें हमने किया है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे पहले एक्सक्रीशन तुम्हें लर्न करना है। एक्सक्रीशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। व्हाई, क्यों करना है, टू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी। हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन कौन करवाता है, किडनी। किडनी में हमारे पास क्या है, 2 किडनीज आ जाती हैं, जिसका डिटेल स्ट्रक्चर मैं तुम्हें करवा चुकी हूँ। रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेड्यूला किडनी के 2 पार्ट्स हैं। किडनीज के ऊपर एक कैप शेप स्ट्रक्चर लगा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं। किडनी के ऊपर 2 ग्लैंड्स हैं जिनको हम एड्रीनल ग्लैंड या फिर पेयर ऑफ ग्लैंड एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं। अब ये जो एड्रीनल मेड्यूला था इसकी सेंट्रल स्पेस रीनल पेल्विस है जो कहाँ पे जाके खुलती है, यूरेटर्स में जाके खुलती है। इसके ऊपर जो प्रोजेक्शंस है उनको कैलाइसिस बोलते हैं। उनके साथ क्या है, मेडुलरी पिरामिड्स अटैच हैं। इन बिटवीन दैट रीनल कॉलम और कॉलम ऑफ बर्टनी इज प्रेजेंट। दिस इज द डिटेल स्ट्रक्चर। अब ये जो किडनी है इसके अंदर क्या पड़े हैं, काफी सारे हमारे पास नेफ्रॉन्स पड़े हैं। ठीक है, दिस नेफ्रॉन क्या होता है हमारे पास, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। In the next video we will do about the structure of nephron. So thanks for watching. If any doubt is there you can add comment.